Thank you again for asking me to discuss on this topic which is very close to my heart because of many reasons. One, that I love criminal law since my days of joining law. That is almost 30 years now. I joined it 94. Banaras Hindu University, the great seat of learning. Another reason was that when the reform process was going on, criminal law reform process was going on, I was fortunate enough that the committee set up by the government has invited me to give my views on one small issues. Third reason was that when the bill was placed, because of my interest, I had studied the bill and presented at least 3-4 lectures at various FDPs, various universities, conveying these are the strengths and these are the weaknesses. Unfortunately, some of the weaknesses have been addressed. Maybe it is because I have highlighted, maybe it is because of any other person has highlighted. And final reason is that the government of India took up the task to spread about these laws to 5 cities: Bombay, Delhi, Calcutta, Madras and Guwahati. And I was as a panel member from the side of government to discuss on BNS at 3 places. I'm continuously writing on this, and of course, with the passage of time, with the age of YouTube channels, I've also placed it in the YouTube channel which the students can search as a Anurag Deep ILI in order to know more about these 3 laws and various other content. Now, as this gathering comprises of people from all background, so I would say that there are 3 parent criminal laws. One is Indian Penal Code 1860. Second is, these are the pointers for today that we shall try to discuss. What is the significance for us? What is the meaning of reform? General comparison, name change is dispute, we will discuss that. Provisions which are deleted, amended, new provisions. What is the impact of Supreme Court judgment? Impact of social media also. And then conclusion, that a very good beginning, but a beginning only. So to begin with, let us not have any confusion that any revolutionary change is going to take place. No. We are in the area of law. We have gone through the law. The changes, the steps are revolutionary, but it will not lead to revolutionary changes. Tariq pe tariq, the situation will not change. Let us not have any confusion. So when you go outside today from this room, if there is any confusion that these 3 laws have come, and then the police will start registering the FIR in an easy way, that is not going to happen very soon. And the courts, the proceeding will be easier, and dates will be given, and there will be no hartal in the court, and the victim or the accused reaches to the court and he will find justice fair and quick. That is not going to happen in near future unless something more is done. But a very good beginning, and we'll all know a good beginning is half done. Now, what is the significance for us? The first significance for us means we all, those who are not in the field of law, they will sometimes wonder, why to know this law? So the simple reason is that whether you are in the field of law or not in the field of law, you are an engineer, you are a management, you are a doctor, you are somebody else, there is a presumption about you. And the presumption is that you know all the laws. आपके बारे में ये धारणा की जाती है कि आप सभी लॉ जानते हैं.
आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ से तमिलनाडु चले गए, आपको हिंदी तो आती है, अंग्रेजी आती है, पर तमिल नहीं आती। आप रास्ते में गए, किसी ने बताया कि आपको जहाँ जाना है आप दाहिनी तरफ से जा सकते हैं, राइट साइड से जा सकते हैं। आप राइट साइड में जा रहे हैं, आपने लिखा हुआ देखा, कुछ लिखा हुआ है तमिल में, पर चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो भी आप चले गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो किसी ने रोक लिया, कहा कि ये तो थॉरोफेयर नहीं है, दिस इज नॉट ए वे। आपने देखा नहीं, सामने लिखा हुआ है कि नो थॉरोफेयर एंड इट विल बी ट्रेसपास एंड यू विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू प्रोसिक्यूट यू। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई हम तो बाहर से आए हैं, आपके कानून की हमें जानकारी नहीं है, हम तो दिल्ली से आए हैं, ये कहेंगे ना? कहेंगे ना? या आप कहेंगे कि भाई ऐसा है, कम से कम अंग्रेजी में ही लिख देते, तो अंग्रेजी तो हम जानते हैं, तुमने तो तमिल में लिख रखा, मैं कैसे समझूंगा? These arguments are of no use. Why? Because it is presumed for everyone, whether you are a billionaire or a beggar, whether you are Ragdeep or Ambani, whether you have DM or CM or PM or a peon, you are a student or teacher, you belong to any discipline, you are literate or illiterate, the presumption is that you know law. This presumption seems weird, but that presumption works. So this is the reason why we should know. We cannot know every law. Nobody indeed can know. But at least some points of law we should be aware of. That is our responsibility also. So this is our significance. When we talk about reform, we can say that 5 or 6 categories of reform have been done. Renaming has been done. We will discuss what type of renaming is it. Renumbering has been done. Rearrangement has been made. Regrouping has been made. Revision has been made, and incorporation of new offenses have been made. 6+1 changes, 5+1 changes have been made. Now, coming to, yes, so this is some background. So the name, initial name was Indian Penal Code 1860. This name is changed to Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. This talks about punishment. What type of punishment shall be given for any offense? And there are description of punishment, description of offenses, some theories, some definition has also been given, and defenses have also been given. That is there any defense? Can you take certain defense? आपने जानबूझ के कोई काम नहीं किया है, गलती से कर दिया है, तो क्या आप बगल में बैठे हैं, जैसे आज बैठे हैं आप, एक ही ब्रांड का मोबाइल फ़ोन आपके बगल के व्यक्ति ने भी लिया हुआ है, आपने गलती से वो मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया, लेकर चले गए, चोरी का अपराध हो गया, थेफ्ट हो गया ये। पर क्या इसका डिफेंस है? यस, द आंसर इज डिफेंस है। सेक्शन 76 जो आईपीसी था पहले और जो भारतीय न्याय संहिता में आ गया है, उसमें डिफेंस है। तो डिफेंस के बारे में बताया गया आईपीसी में। तो आईपीसी में ऑफेंस भी बताया गया है, डिफेंस भी बताया गया है, डिस्क्रिप्शन भी उसका बताया गया है, कौन सी पनिशमेंट मिलेगी ये डिटेल बताई गई है आईपीसी में, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है। दूसरा लॉ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक संहिता को हम कहते हैं BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को हम कहते हैं BNSS। याद करना बहुत आसान है, लॉ वालों के लिए भी और जो लॉ में नहीं है उनके लिए भी, BNS और BNSS। ठीक है, BNSS हो गया CRPC के लिए। CRPC क्या है? मान लीजिए कि मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं पुलिस थाने में जाऊंगा, FIR दर्ज करूंगा। तो FIR कहां दर्ज होगी? कब हम कोर्ट में जाएंगे? FIR कैसे दर्ज होगी? पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होगा? मामला कोर्ट में कब जाएगा? कोर्ट में कार्रवाई कैसे शुरू होगी? कब सम्मन किया जाएगा? कोर्ट में चार्जशीट कब सबमिट होगी? किस समय प्रोसिक्यूशन शुरू होगा? यदि पाया जाता है कि व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, देन व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन? तो ये सारी चीजें, और कब उसकी रिलीज हो सकती है, पहले उसकी बेल कब हो सकती है, ये सारी बातें आईपीसी या BNS में नहीं है। BNS में केवल पनिशमेंट है, ऑफेंस है, डिफेंस है। ये जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया बताई गई है CRPC में या BNSS में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तीसरा हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट।
अब ये हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई बात अगर हो गई है, पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस को सबूत के आधार पे काम करना है। हम तो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो भी एक सबूत है, पर उसके अलावा भी सबूत चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो गई हो। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, मोबाइल फोन आपका अचानक पता चला नहीं है, आपने कहा मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, पुलिस के पास आए, पुलिस जानकारी लेना चाहेगी, भाई मोबाइल फोन कहाँ मिला, कहाँ कैसे चोरी हो गया, कहाँ थे आप, किसने लिया, क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि मोबाइल फोन चोरी ना हुआ हो, आपसे कहीं गिर गया हो। यदा कदा ऐसी भी घटनाएं होती हैं, हमारे आपके साथ भी हुई है कि हमने स्वयं ही उसको कहीं रख दिया है और लंबे समय तक ढूंढ रहे हैं, घर में भी होता है, बाहर भी होता है। तो सबूत चाहिए होता है। न्यायालय में जो काम होता है वो सबूत के आधार पर होता है। यदि आपके पास सबूत है तो न्यायालय और पुलिस दोनों कार्रवाई करेगी। पुलिस का काम सबूत इकट्ठा करना है, हमारा काम इकट्ठा करना नहीं है। पुलिस के काम सबूत इकट्ठा करना है, हमारा काम उसको हेल्प करना है। और देन दैट एविडेंस शैल बी प्रेजेंटेड बाय द पुलिस in criminal cases and in other cases by us, by the advocate in the court of law. Based on that evidence, underline the word, that evidence, the result will come in. यदि घटना हुई है और एविडेंस नहीं है तो न्यायालय के हाथ बंधे हुए हैं, वो बिना एविडेंस के कोई काम नहीं कर सकती, उसके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कई बार अपराधी छूट जाते हैं, उसके बारे में जानकारी है कि हाँ उस अपराधी ने ऐसा काम किया है, इसलिए कि जो एविडेंस चाहिए या जिस स्टैंडर्ड के एविडेंस चाहिए वो स्टैंडर्ड के एविडेंस हमें नहीं मिल पाते। ये सारी जानकारी के लिए पूरा का पूरा एक एविडेंस एक्ट है, उसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं। तो ये एविडेंस एक्ट है जिसका नाम अभी बदल करके कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इसमें इसकी जो चेंजेस इसके हुए हैं, ऐसा नहीं है चेंजेस अचानक हो गए। इनमें से कई लॉ के चेंजेस के लिए लॉ कमीशन ने बहुत पहले भी कहा था। 1997 there was a committee, there was law commission report, 257th law commission, 257th report of the law commission. Then there was a Malimath committee also, that also suggested that the laws needs to be changed, all laws needs overhaul, but no concrete changes have been made, no comprehensive changes may be made, had been made, piecemeal changes have been made. थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम लोगों ने किया है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया था। बाद में सरकार ने 2020 में एक समिति बनाई, कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने लोगों से डिस्कशन किया, देश के कई लोगों से, कई विद्वानों से, कई विश्वविद्यालयों से डिस्कशन किया। मैं समझता हूँ उनको और बेहतर डिस्कशन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद 2023 में, इन 2023 बिल वॉज प्रेजेंटेड in the parliament. When the bill was presented, when a bill is presented, there are two courses. One, that the bill can be directly passed from the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha both. There is another course that is a better course, that it is sent to a select committee. Select committee of the parliament is a group of parliamentarians which consists of both ruling party members and opposition. So many times in the parliament, the broad discussion, comprehensive discussion is not possible. So there is a committee. So similarly, a committee has been made. In this committee, Brijlal, who was a senior IPS officer, having a tenure of around more than 25 or 30 years in Uttar Pradesh, he was chairperson of that committee. And in that committee, headed by him, there were various members from Treasury branch, from opposition, and they have discussed it, and the report was submitted. The best thing is that the report was submitted in 2023 itself. Why is it important? Because many times the committees are made, but the reports do not come for 2, 3, 4, 5, 6 years. एक कमेटी आती है, वो कमेटी सो जाती है, उसको जगाने के लिए एक नई कमेटी का गठन करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि ये कमेटी आई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि इस कमेटी ने भी थोड़ी जल्दीबाजी दिखाई। इस कमेटी को भी और भी विद्वानों से संपर्क करना चाहिए था। अगर आप इनकी रिपोर्ट देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो इन्होंने बहुत लिमिटेड लोगों से संपर्क किया है। मुझे नहीं पता ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इतना बड़ा चेंज हो रहा था, उनको और भी ज़्यादा लोगों से संपर्क करना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही संपर्क नहीं किया है। दे हैव कंसल्टेड, दे हैव डिस्कस्ड, बट ए बेटर कोर्स कुड हैव बीन अडॉप्टेड ऑल्सो। अल्टीमेटली इन December 2023,
Parliament passed these three laws. When the law was passed, the opposition, because of their indiscipline in the House, was suspended, and therefore, probably the government should have found a way to convey them, to persuade them to come to the Parliament and discuss, comment on these comprehensive changes, which the government failed to do. On the other hand, even the opposition did not discharge its responsibility very carefully, because a comprehensive change, a change of the century was going to be made, but the opposition did its job jointly. I think in this very good step, this is probably a black spot that the government and the opposition both could not discuss it. They may not agree, that is a different matter, but they could be in the Parliament to discuss it properly. So I think this is one aspect of criticism that can be highlighted here. Finally, law was passed on 25th December 2023, but it was not yet enforced. Some time was given, 6 months time was given, so that we all understand, so that the stakeholders, there are three stakeholders: the police, the judiciary, the prison officials. There are three stakeholders. They were trained in many training programs. I was a part of that. Unofficially also, I have placed all my discussions on any YouTube videos. Some of the YouTube videos have gone to 20,000 views. For an academician, 20,000 views is a great thing. So after this 6 months, 1 जुलाई 2024 अर्धरात्रि से 12 बजे रात के बाद से नया कानून लागू हो गया। ये बैकग्राउंड है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमेशा रहता है हमारे पास कि क्या पुराना कानून लागू रहेगा? द आंसर इज यस, पुराना कानून लागू रहेगा। जो भी घटना, ऑल इंसिडेंट विच वे कमिटेड, every offense which was committed prior to midnight of July or June 30, everything that was done, that will be prosecuted under Indian Penal Code. So suppose, today is 7th of August. Suppose someone is arrested and he says that I killed a person on 28th June. He is arrested today, and he tells police that I killed a person, I committed a theft, I committed some robbery on 28th of June. Even if he is telling this, because the incident took place on 28th of June, FIR shall be registered not under BNS but under Indian Penal Code. So whether the both laws continue? Yes, both laws continue. Police has to work on both laws. जो ओल्ड लॉज हैं, ओल्ड लॉज पे वो चलते रहेंगे और नए लॉज पे नए एफआईआर दर्ज होते रहेंगे। कोर्ट में क्या होगा? दोनों लॉज चलते रहेंगे, दोनों लॉज चलते रहेंगे। जो मामले 1 जुलाई के बाद के हैं वो नए कानून में आएंगे, जो 1 जुलाई के पहले के हैं वो पुराने कानून में, भारतीय न्याय संहिता में नहीं आएंगे, वो भारतीय दंड संहिता में आएंगे। तो दोनों कानून चलते रहेंगे। ये कानून मुझे लगता है कि शायद अगले 15 साल 20 सालों तक, जब तक कि फाइनल कन्विक्शन नहीं हो जाता, चलते रहेंगे। आपको ध्यान होगा टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1997 में ही खत्म हो गया, अभी तक उसके मामले चल रहे हैं, 2024 में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कुछ 20 साल 25 साल बाद यहाँ पर टीचर्स के रूप में, डीन्स के रूप में, हेड्स के रूप में खड़े हों। जो यंग जनरेशन के टीचर्स हैं, हो सकता है कि वो रजिस्ट्रार की पोजीशन पर, वाइस चांसलर की पोजीशन पर खड़े हों, और हम जैसे लोग पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहना मुश्किल है अभी भी। हाँ, तो हो सकता है तब भी आप सुने कि आईपीसी में अभी भी सजा हुई है, इसलिए क्योंकि ये मामले सारे पहले के दर्ज हुए हैं, और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो ऐसी भूल भुलैया है जिसमें कि 20 साल का समय लग जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सरकार ने जो काम शुरू किया है, उससे लगता है कि उसकी मंशा इस बार ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वो अच्छा काम करना चाहती है, चीज़ों को ठीक करना चाहती है, और तारीख पे तारीख की जो स्थिति आई है उसको वो बदलना चाहती है। रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें 2 लाइन आपके सामने कहूँगा, 2 चीज़ें ऐड करूँगा। एक तो थॉमस जेफरसन ने कहा था कि यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू बाइंड टू वियर द सेम कोट विच वॉज फिट टू हिम व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। जब वो बच्चा था, वो जो कोट पहनता था वही कोट पहनने के लिए उसको बड़े होने पर आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि फिट नहीं होगा। चीज़ें बदल जाती हैं, तो चीज़ें बदलती हैं तो सब कुछ बदलना होता है, और जो लोग नहीं बदल पाते वो, उनके लिए कहा गया है ना
कि तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, किसी के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो बैठे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो इस प्रकार जब आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं तो आप दूर तक जा सकते हैं, लेकिन आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप जो है एक जगह स्थिर हो जाते हैं, और ठहरे हुए जल जो होता है वो जो है बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। और इसलिए बदलाव तो होना चाहिए। सरकार ने ये काम किया है, संसद ने काम किया है, और हम लोग को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन मामलों में एक बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि जो नाम दिए गए हैं ये हिंदी में नाम क्यों कर दिए गए हैं। इंडियन पेनल कोड का नाम हम हिंदी में पहले भारतीय दंड संहिता कहते थे। भारतीय न्याय संहिता का नाम एक्चुअली इंडियन जस्टिस कोड होना चाहिए था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हिंदी में पहले हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, पर अब उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। क्यों नहीं इसको इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड क्यों ना कहें। और इसको लेकर ऑब्जेक्शंस कुछ क्वार्टर से आए हैं, पॉलिटिशियंस ने ऑब्जेक्शन किया है। मैं बॉम्बे के कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात इंडिकेट की थी कि इस तरह का नाम हिंदी में क्यों किया गया है। तो इसलिए पहले तो मैं इसको लाइटली ले रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पॉलिटिशियन के अलावा अगर एक चीफ जस्टिस भी ये बात कहते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम इंडियन एविडेंस एक्ट था, और इंडियन एविडेंस एक्ट ही कहना चाहिए था। तो ऐसा क्यों किया गया है, इसके बहुत ही वैलिड रीज़न है, बहुत वैलिड रीज़न है। पहले तो ये समझ लें कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों का ये आर्गूमेंट है कि दक्षिण भारतीयों पे उत्तर भारत की भाषा थोपी जा रही है। एक आर्गूमेंट पॉलिटिशियन वर्ग का ये है। दूसरे लोगों का कहना है कि ये तो जो इंग्लिश एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हम उससे दूर जा रहे हैं, एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव नहीं, ये तो एक पीछे जाने का कदम है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं है। जो लोग कानून के जानकार हैं और नहीं भी जानकार हैं उनको पता होगा, हमारे यहाँ कानून है, बहुत पहले बना है, उसका नाम है पंचायती राज एक्ट। पंचायती राज के लिए अंग्रेजी का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज के लिए जो है कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है। 2008 में ग्राम्य न्यायालय अधिनियम आया, उसका एक्चुअल नाम ग्राम्य न्यायालय अधिनियम है। चाहते तो उसका नाम रख सकते थे, विलेज कोर्ट एक्ट रख सकते थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले के कानून इस तरह के नहीं बने हैं। कई कानून इस तरह के बने हैं जो कि अपनी भाषा में बने हैं, क्योंकि वो आसानी से लोगों को समझ में आ जाते हैं। और इसका भी पर्पस यही है, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारे लिए हो सकता है कि ये जानना आसान है, पर देश की जो आम जनता है वो यहाँ से अलग रहती है। वो हर रोज़ जो है वो उसकी जो मंथली सैलरी है वो 25,000 से कम है, जिस तो शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पर हो जो उस कैटेगरी में आता हो। हम फॉर्चुनेट हैं। 95% लोग हिंदुस्तान में जो है वो 25-30 हज़ार मंथली की सैलरी पे काम कर रहे हैं। वो अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं जानते। 20% लोग मुश्किल से अंग्रेजी जानते, बाकी लोग हिंदी जानते हैं और भाषाएं जानते हैं। तो इसलिए वो इस तरह की जो भाषा का परिवर्तन कोई गलत नहीं है, ये एक अच्छी बात है, ये लोकतांत्रिक परिवर्तन है, ये अच्छा है, पहले भी हुआ है। पर इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और रीज़न इसके लिए बताना चाहता हूँ। एक रीज़न इसका डीकोलोनाइजेशन भी है। फ्रांस में डीकोलोनाइजेशन करने के लिए 25 साल पहले उन्होंने कानून बनाया। आप देखिए, फ्रांस एक ऐसी जगह है जहां लिबर्टी की शुरुआत हुई थी बहुत पहले, जो कहा कि भाई ठीक है लिबरल हैं हम लोग, पर इतने भी लिबरल नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अंग्रेजी भाषा तो लैंग्वेज की दृष्टि से पढ़नी चाहिए, जैसे स्पेनिश पढ़ सकते हैं, जैसे फ्रेंच पढ़ सकते हैं, जैसे हम मंदारिन पढ़ सकते हैं। मैं IIM रोहतक जा रहा हूँ आजकल, और वहाँ जो है एक टीचर आ रहे हैं। मैंने कहा भाई आप क्यों आते हैं? बोले मैं मंदारिन पढ़ाने आता हूँ। हमने कहा मैनेजमेंट के लोग? यस सर, क्योंकि वो चाइना में जो है बहुत अच्छा स्कोप खुला हुआ है और वो किसी और को आने नहीं देते, वो तो मंदारिन पढ़ रहे हैं वो। तो सिमिलरली ये जो लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज को लेकर जो बात कही जा रही है, ये शायद कोई बहुत सही बात नहीं है। ये एक अच्छा कदम है, डीकोलोनाइज करने का एक कदम है। डीकोलोनाइजेशन की ये प्रक्रिया बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अब शुरुआत हुई है, तो कोई बुरी बात नहीं है। फ्रांस ने और तमाम देशों ने अपने अपने देश से उन शब्दों को हटा दिया है जो कि अनावश्यक रूप से उस देश में शामिल थे।
फिर मैंने एक और बात जानने का प्रयास किया, ये जो भारतीय वर्ड है, ये जो न्याय वर्ड है, क्या ये बंगला में नहीं होता? कोई है यहां पर जो व्यक्ति बंगाल का है, बंगला जानता हो? कोई है? मुझे बताए बंगला में होता है कि नहीं होता? भारतीय शब्द है कि नहीं? न्याय शब्द है कि नहीं है? मैंने तो पहले भी पूछा, मैंने बॉम्बे में भी पूछा था कि बताओ मराठी में होता है कि नहीं? सबने कहा जी मराठी में तो न्याय भी शब्द है, भारतीय भी शब्द है। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पूछा कि क्या तेलुगु में भारतीय शब्द है कि भारतीय शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, भारता कह देते हैं उसे। तमिल में भारतीय शब्द होता है, शब्द ही है। मलयालम में भी भारतीय शब्द बोलते हैं, कन्नड़ में भी भारतीय शब्द बोलते हैं, नेपाली में बोलते हैं। फिर तो भारतीय शब्द जो है ये नेशनल इंटीग्रेशन का द्योतक हो गया। तो जो हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड, इसकी बजाय हम भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, तो ये तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑपोजिशन करने का कोई बहुत स्ट्रांग आधार नहीं है। मेरे दिमाग में ये भी बात आई, जो मेरे विद्यार्थियों ने भी सुझाया, कि हम लोग अब अगर इस स्तर पे चले जाएंगे तो कोई क्या कल को ये कहने वाला है कि जनगण मन हम नहीं गाएंगे क्योंकि जनगण मन तो किसी दूसरी भाषा में है, या कोई ये बोलेगा कि वंदे मातरम तो बंगला में लिखा गया था। तो ये तो राष्ट्रीय जो हमारे प्रतीक होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, राष्ट्र की जो भाषा होती है, उसको लेकर हमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं करने चाहिए। मैं शुरुआत करता हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से तो हम यहां से अब शुरू कर रहे हैं, कानून की जो क्या क्या परिवर्तन उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने चर्चा की है उसमें विद्यार्थियों में से किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई कमेंट है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। लास्ट तक वेट करने की बहुत जरूरत नहीं है। कोई बात आप पूछना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क ऑन द डिस्कशन दैट हैज ऑलरेडी बीन डन on the issue of amendment, on the issue of committees, on the issue of names. If you have anything to comment on, please note down. Especially I encourage the students and the girl students especially to raise more and more questions. Ask more and more questions. Is there any question? Any point you want to ask? Keep it safe. Kindly note, not asking question, not having question is not a very good thing. That only shows that the discussion is not very good. There must be questions and more questions and comments also. So keep your questions open. Coming to भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपको ध्यान होगा 3 कानून की हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम केवल सबूत की बात करता है, साक्ष्य की बात करता है। वो ना तो अपराध की बात करता है, ना ही बहुत ज़्यादा प्रक्रिया की बात करता है। डज नॉट टॉक अबाउट आइदर ऑफेंस, डिफेंस, और neither it talks about procedure of FIR and courts and others, only evidences. So old Indian Evidence Act contained 167 sections, but the new Bharatiya Saksha Adhiniyam contains 170 sections. 3 sections have been added. And there are 2 schedules also they have been added. Schedules means schedules are another instrument of law where you keep one thing together. So they generally contain certain forms. Not many changes have been made in Indian Evidence Act. 2 new provisions have been added, like in context of Information Technology Act, in context of BNS, BNSS, and e-record, digital record, they have been added. 2 major changes have been made. This is very obvious because these days e-records and digital records, we have cell phones, we make a video, we make, thank you dear, we make videos, so we are creating digital records every day. So it is a recognition, it is obvious, it is a progressive recognition that has to be done. Similarly, certain provisions were deleted. Word India is deleted because suppose somebody is committing an offense against India outside. कनाडा से आप देख रहे हैं, कनाडा में बैठा हुआ एक आतंकवादी पन्नू जो है वहाँ से इंडिया के अगेंस्ट में कभी कहता है एयरपोर्ट उड़ा देंगे, कभी कुछ कहता है। तो कभी कभी ये दिक्कत आ सकती है कि अगर उसे पकड़ा गया तो वो कहेंगे भाई हम तो कनाडा में कर रहे थे। तो इसलिए इंडिया वर्ड को हटाएगा कि कहीं भी जो है आप कर रहे हो वो आप प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं। 23 provisions were modified. Now before I start this, these provisions were incorporated does not mean
कि प्रायर टू दैट दे वर नॉट वर्किंग, दे वर ऑलरेडी वर्किंग, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वी फाउंड इन 2002 itself, it was amended in 2008, so certain changes were made, but with the help of judicial decisions, e-records, digital records, they were working, but a statutory recognition has cleared doubts. In case there is any doubt, these doubts have been cleared by the through statutory recognition. Now there are certain provisions which have been deleted, और आप भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इतने दिन तक इसको रखा ही क्यों था। आप देखिए 82 आपके सामने है, और इसमें मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंग्लैंड और आयरलैंड, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और आयरलैंड, वी आर नॉट नो मोर स्लेव। ये 1872 का है, 1872 के एक्ट के समय हम तो गुलाम थे उस समय, वी वर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। 1950 तक तो फिर ब्रिटेन में कानून चलता था, वहाँ पर अपील भी जाती थी, तो वहाँ की एविडेंसेस के लिए हम बात कर सकते थे, पर 1950 के बाद हम रिपब्लिक हो गए, एंड देन दिस प्रोविजंस वर नॉट रिक्वायर्ड, बट दे कंटिन्यू 2024 23, इसे तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था। 113 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज रिपील्ड, 1950 it was repealed. There was no need to continue with this. There was no need. पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। नेटिव स्टेट प्रिंस रूलर, अब नेटिव स्टेट का कंसेप्ट खत्म हो गया। हमारे यहाँ इंडिया में कोई प्रिंस नहीं है अब, वी आर डेमोक्रेसी। आप प्रिंस हैं तो आपको चुनाव लड़के आना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं आ सकते। सो नोबडी इज प्रिंस नाउ। 1950 के पहले लोग राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे। ये कंसेप्ट तो ब्रिटेन में अभी भी है, हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है। वी आर फुल डेमोक्रेसी। Therefore, native state prince and ruler, nobody is ruler. They are not ruler. They are the representative, not ruler. R stands for ruler, R stands for representative. They are our representatives. So therefore, this ruler, these words were used for British, and they had to be removed, and therefore these provisions have been repealed. Then certain provisions were amended. Again देखिए आप, of the United Kingdom word है, London Gazette है. What we have to do with London Gazette? We have Indian Gazette. We are a sovereign country. It was a question mark on sovereignty. ये सब तो पहले खत्म कर देना चाहिए था। Dominion, colony, possession of His Majesty, ये ब्रिटेन में मैजेस्टी के पोजीशन में चीजें होती है। In our country, things are in possession of the Constitution, things are in possession of the government of India or the government of state. So they should have been removed earlier. इसलिए इसको हटाया गया, amend किया गया। Then power of jury and assessors, ये कंसेप्ट ब्रिटेन में है, ये कंसेप्ट यूएस में है, इंडिया में कभी नहीं रहा। 1950 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं रहा, इसे हटा दिया गया। प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, टेलीग्राफिक मैसेज, जो टेलीग्राफ आप करते हैं, नाउ द न्यू जनरेशन माइट नॉट नो, there was a instrument that was known as telegram. टेलीग्राम नॉट इन द सोशल मीडिया वाला टेलीग्राम, वो तो आप जानते हैं, वो टेलीग्राम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो नए जनरेशन है शायद उनको पता नहीं होगा कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले टेलीग्राम वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। लोग जाते थे पोस्ट ऑफिस में, एक लाइन 2 लाइन का टेलीग्राम लिखा करते थे, और जब वो टेलीग्राम आया करता था तो जनरली बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, आमतौर पर अच्छा नहीं माना जाता था, किसी का डेथ हो गया है, कोई ऐसी बात हो गई है, वो टेलीग्राम लिखे जाते थे बहुत पहले। ये बात हो गई 20 साल 25 साल पहले की। मुझे ध्यान नहीं आता लास्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स में आई हैव डन एनी टेलीग्राम। एनीवन रिमेंबर्स लास्ट टाइम कब आपने टेलीग्राम किया था? आप में से आपने सर बताइए कब किया था? 50 years back, 50 years back you did your telegram. और कोई बताएं अगर किसी को याद आ रहा हो ओल्ड जनरेशंस में कि उन्होंने टेलीग्राम किया था 25-30 साल पहले। सो टेलीग्राम बिकेम रिडंडेंट। टेलीग्राम की जगह जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई, हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था, पर अभी तक हम जो है अभी तक इसे संभाल के रखे थे, इसे हटा दिया गया। इसके बारे में प्रिजम्पशन थे, ये हटा दिया गया कि वो जो टेलीग्राम करते थे वो सिस्टम ही हटा दिया गया। सेक्शन 2D अमेंड किया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया। इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, हम किसी की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन पे, आप में से कोई कर रहे हैं
ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया। वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में फ़र्क है थोड़ा सा, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसका एक रिकॉग्निशन केवल कर दिया गया है। इस तरह एविडेंसेस बहुत सारे इसमें चेंजेस, कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ जो चेंजेस थे वो मैं स्किप करके हट रहा हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए पार्लियामेंट ऑफ द यूके करके लिखा हुआ था, ये सब हटाया गया है। तो ये चेंजेस थे जो एविडेंस में किए गए। यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे निवेदन किया ना, मैंने पहले भी कहा कि तो बेसिक चेंजेस दैट कुड हैव बीन डन इन 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, जबकि लॉ में चेंज किया गया। 5 में बदला गया लॉ, 12 में भी बदला गया, 18 में भी बदला गया, लेकिन अल्टीमेटली चलिए जो भी सरकार थी उनको सुध आई और ये परिवर्तन उन्होंने बाद में ही सही उन्होंने परिवर्तन किया। आप देखेंगे कि भारत के संविधान में भी अभी भी कई इस तरह के चेंजेस करने हैं जो 50s के दौर में थे। फेडरल कोर्ट वर्ड अभी भी यूज़ हो रहा है, फेडरल कोर्ट हमारे यहाँ नहीं है। तो अब कोई सरकार को ध्यान में दिलाएगा कि भाई वहाँ भी परिवर्तन करना है तो शायद ये परिवर्तन हो जाएंगे। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये दूसरा पड़ाव है। उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई सवाल है, किसी के पास कोई जानकारी है। थैंक यू फॉर कमेंट सर, आपने बताया पहले भी होना चाहिए था। किसी विद्यार्थियों को मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोई बताएगा आप में से इसका पुराना नाम क्या था? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आप लॉ से हैं? लॉ से नहीं है तो एक क्लैपिंग करिए इनके लिए, सब लोग एक क्लैपिंग करिए। वेरी गुड। दिस शुड बी द अलर्टनेस एंड अटेंटिवनेस। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। लॉ वाले लोग ध्यान रखेंगे, पहली बार में जब बोलते हैं तो पूरा नाम बोलते हैं, ठीक है। और जो लोग रिसर्च करने वाले हैं उनको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ लॉ के आगे द वर्ड भी लगाते हैं, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973। जब हम डिसर्टेशन करते हैं, पीएचडी करते हैं तो इस बात को ध्यान दिलाते हैं पहली बार। इसका नाम बदल करके कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। और अगर मैं अगला क्वेश्चन ये पूछूं कि इसमें किस बात की चर्चा है, क्या इसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से अपराध होंगे, तो कोई जवाब देगा आप में से? क्या इसमें ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन दी गई है, ऑफेंस के बारे में, वेदर ऑफेंसेस आर डिस्क्राइब्ड इन दिस और नॉट? चोरी का अपराध कैसे होगा, मर्डर का अपराध कैसे होगा, क्या इसका डिस्कशन इसमें है कि नहीं? कोई बताएगा आप में से? एनीवन ट्राई? देयर इज नो नथिंग ना, एंड ए बैड ट्राई कैन ऑल्सो बी देयर, नो प्रॉब्लम। बताइए कोई स्टूडेंट्स में से, पीछे जो बैठे हैं उनमें से बताइए। मैंने इसको ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है एक बार, लेकिन फिर भी कोई जवाब देना चाहे तो हाँ बताइए। प्रोसीडिंग। सो इसमें ऑफेंसेस के बारे में नहीं बताया गया है। मैंने आपसे बताया था ऑफेंसेस के बारे में किसमें बताया गया है? आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में, जिसकी अभी शुरुआत नहीं की है हमने। इसमें क्या बताया गया है? एफआईआर कैसे होगी, कहां होगी, कोर्ट में प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है। एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, ये सब बातें बताई गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रोसीजर बताया गया है इसमें, प्रोसीजर। अब देखिए इसमें आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले जो नाम था वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इससे ऐसा लग रहा था कि पुलिस का काम क्रिमिनल से डील करना है, कोर्ट को किससे डील करना है? क्रिमिनल से डील करना है, और प्रिजन ऑफिसर किससे डील करना है? क्रिमिनल से डील करना है। जबकि वी ऑल नो कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाए तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, देन आई कैन ऑल्सो बिकम ए क्रिमिनल। क्रिमिनल इन द सेंस कि एक्यूज तो हम हो ही जाते हैं, एंड 90% ऑफ द एक्यूज दे गेट एक्विटेड। सो पुलिस केवल क्रिमिनल से डील नहीं करती, वो इनोसेंट पीपल से भी डील करती है जब उसको इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। ये जब मान लीजिए कि उससे जानबूझ के अपराध नहीं हुआ है, नेग्लिजेंटली अपराध हो गया है, गलती उसकी है, पर उसे खुद ही दुख हो रहा है कि हाँ भाई हमसे अपराध हो गया है, ठीक है, दे आर नॉट क्रिमिनल। तो कितनी अच्छी बात हुई है कि उसको रिप्लेस करके नागरिक वर्ड कर दिया गया है। पुलिस हैज नॉट टू डील विथ क्रिमिनल्स, दे हैव टू डील विथ होम, टू सिटीजन्स। पुलिस मस्ट नो इट। आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो चूंकि अगर आप तो ये सोचते हैं कि हमें तो क्रिमिनल से डील करना है, तो जो भी व्यक्ति आता है आपके दिमाग में हमें तो बस क्रिमिनल से डील करना है, तो बिल्कुल टाइट होकर हम रहते हैं, बिल्कुल ना कोई मतलब संवेदनहीनता रहती है उनमें। अधिकांश मामलों में संवेदनहीनता देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, I'm not painting every police officer and every police station with the same thing. They are great police officers who have done great job also.
तो अब एक चेंज करने का सरकार ने प्रयास किया है। पुलिस का जॉब क्या है? नागरिक की सुरक्षा करना। पहले क्रिमिनल से डील करना था, उसके एफआईआर दर्ज करना, उसको कोर्ट में ले जाना, उसको कन्विक्शन करना। अब मेन काम पुलिस का क्या हो गया है? नागरिक की सुरक्षा करना। कोर्ट का क्या काम है? क्रिमिनल से डील नहीं करना, नागरिक की सुरक्षा करना उसका काम है। और प्रिजन ऑफिशियल्स का भी काम है, भले ही प्रिजन में कोई व्यक्ति गया है, हो सकता है ही मस्ट हैव कमिटेड सम ऑफेंस, बट एवरीबडी इज राइट टू रिफॉर्म, तो उसे भी नागरिक सुरक्षा। सो द पार्लियामेंट वांट्स टू गिव मैसेज टू दीज थ्री स्टेक होल्डर्स एंड टू अस ऑल्सो हु आर द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दैट आवर जॉब इज नॉट टू जस्ट ट्राई एंड क्राई अबाउट क्रिमिनल्स, उनको ये अरेस्ट कर दो, उसको पकड़ लो, उसको जेल भेज दो। नो, नागरिक की सुरक्षा इज द फोकस। नागरिक की सुरक्षा करते हुए फिर जो क्रिमिनल है उसको सही सही सजा भी देनी है, पर आपका फोकस क्या है? नागरिक की सुरक्षा करना। सो दिस फिलोसफिकल चेंज द गवर्नमेंट वांट्स इन द मेंटालिटी ऑफ द थ्री स्टेक होल्डर्स, दैट इज द पुलिस एंड द कोर्ट एंड द प्रिजन ऑफिशियल्स। CRPC 1973, it has 484 provisions, 484 CRPC. Now the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, it has 531 provisions. 531 provisions. 9 provisions have been deleted, 9 provisions have been added, 160 provisions have been amended, and some are game changer. I will just discuss with you how are they game changers. Some definitions have been there, bail bond. अगर डेफिनेशन नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी हो गई, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड नाउ, तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज ए इलेक्ट्रॉनिक। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, दो इट इज ए क्लासिकल मोड, बट एवरीबडी हैज अ सेल फोन एंड वी आर अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज बिकम एवरीडे अफेयर। सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इनकॉर्पोरेट किया है। बेलेबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी को लेकर कुछ चेंज किया है, जिसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा, और उसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्टली डील करने वाला है वो, क्योंकि वो सभी लोग जो गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग जो गाड़ी चलाते हैं उनसे ये जुड़ा हुआ होगा। मैं उसकी चर्चा करूंगा अभी। सबसे पहले आते हैं एफआईआर में क्या चेंज हुआ है। एफआईआर क्या होता है हम जानते हैं। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं या ओरली यू गो टू ए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं, पुलिस स्टेशन आपकी बात को एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करती है, और फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसकी कॉपी आपको देती है। दैट इज इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट, दैट इज एन एफआईआर। इफ यू राइट एन एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन में पुलिस वाले मुहर मार के वापस देते हैं, दैट इज नॉट एन एफआईआर। ये ध्यान रखना आपको। तो आप में से जो लोग लॉ के नहीं है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि मेरी तो एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज नहीं हुई आपकी। अगर उन्होंने आपकी कागज पे मुहर मार के दे दिया आपकी कंप्लेंट पे, दैट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट। एफआईआर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, सो यू इंसिस्ट दैट एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो एक एफआईआर करते हैं, वो एक फॉर्मेट है, वो प्रिंट होता है, प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है एफआईआर। आप वो होता है। नाउ देयर आर 2-3 डिफिकल्टीज विथ एफआईआर। फर्स्ट डिफिकल्टी दैट वी ऑल नो, दैट इफ यू गो, आपका मोबाइल फोन कोई छीन ले या आपके चेन कोई छीन ले रास्ते में, मुझे डाउट है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरे दावे से कहे कि मैं हाथ खड़ा करता हूं, मैं पुलिस स्टेशन पे जाऊंगा, मेरी एफआईआर तुरंत दर्ज हो जाएगी। आई माई सेल्फ कैन नॉट डू। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ट्वाइस। माई फोन, once it was snatched, once it was stolen. Both days I had went to the Saibabad police station, my vicinity, and I went at around 8 p.m. and I had to stay up to 2 a.m. मैंने कहा एफआईआर जब तक दर्ज नहीं करेंगे मैं जाऊंगा नहीं। आई एम LLM from BHU, LLB from BHU, PhD from Gorakhpur University, teaching in the best of the law institute. My FIR was not registered for more than 5-6 hours. So I can understand, and you can understand the plight and the difficulty and the predicament of any person. So I doubt anybody of you can say with full guts that I will go, FIR will register. This is one problem. This has been partially addressed, but I will come to that later on. First is the concept of zero FIR has been incorporated. What is this concept of zero FIR? आप रात में यहाँ से, मान लीजिए कि यहाँ से आप बाहर निकले, आप यहाँ से बाहर निकले रात में करीब 10 बजे के आसपास,
और रास्ते में किसी व्यक्ति ने आपका जो है आपको लूटपाट कर दी हाईवे पे, आप वहाँ रुकना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लग रहा है, फैमिली आपके साथ है, और यहाँ से भाग करके आप दिल्ली तक पहुँचे, और दिल्ली में आपने कहा 1 बजे रात हो गई, 2 बजे हो गई, या घर पहुँच गए आप, और आपने कहा फिर कि जो है अगले दिन कि भाई FIR एक दर्ज कर दीजिए, मेरे साथ सोहना के पास, रोहतक के पास या किसी एक जगह ऐसी घटना घट गई है। तो पुलिस पहला काम ये पूछती थी जनरली क्या पूछती थी पुलिस, सबको पता है ना क्या पूछती थी पुलिस, बताइए? अपने एरिया में, मतलब अपने एरिया का मतलब तो आप तो बोल सकते हैं कि मैं यहीं रह रही हूं, मेरा ही एरिया है, फिर प्लेस ऑफ क्राइम। पुलिस पूछती थी कि भाई घटना कहाँ घटी है, आपने बताया भाई घटना तो जो है, हाँ वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाइए आप और वहाँ जाके FIR दर्ज करिए, जो हमेशा पॉसिबल नहीं था ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, आप मान लीजिए आप बस में सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आपको अर्जेंट जाना है, कोई घटना घट गई, आपको किसी को मेडिकल अटेंशन देने के लिए जाना हो, ब्लड देने की, तो आप वहाँ अपने जो आपके साथ बटुआ खो गया, कोई लूट लिया, आप उसे देखेंगे कि जाएंगे फिर मेडिकल के लिए, और दूर जाना पड़ सकता है आपको, ट्रेन हो सकती है, फ्लाइट हो सकती है, रास्ते में आपका मान लीजिए कि आपका जो है बैग 2-3 बैग था, आपकी एक फ़्लाइट है, एक बैग आपका चोरी हो गया, आप जल्दी से फ्लाइट पकड़े, आप चेन्नई पहुँच गया, घटना घटी कहाँ, दिल्ली में घटी, चेन्नई पहुँचे, आपने कहा भाई, बोलेंगे भैया आप जाइए FIR दर्ज कराइए वहाँ पे, ये अक्सर वो कहते थे। नाउ दिस हैज़ बीन चेंज्ड कंप्लीटली through statute, and the concept of zero FIR has been incorporated. That means FIR can be registered at any place without jurisdiction. आप देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी FIR दर्ज करा सकते हैं। दिस इज ए रिवोल्यूशनरी चेंज दैट हैज बीन मेड। CRPC के सेक्शन में साफ साफ लिख दिया गया है। आप पुलिस ये नहीं कह सकती कि भाई आप जाओ दूसरी जगह जाके आप जो है जहाँ घटना घटी है वहीं जाके FIR दर्ज कराओ। आप FIR यहाँ भी आप कहीं भी जाके दर्ज करा सकते हो। तो इससे बहुत फ़ायदा हो गया है, हैरासमेंट कम हो गया है, दिक्कतें कम हो गई है, सुविधा ज़्यादा हो गई है। ये पहला काम हो गया है। इसका नाम जीरो FIR दिया गया। जीरो FIR का मतलब है कि FIR वहाँ दर्ज होगी, फिर जहाँ पर घटना घटी है ये पुलिस की ड्यूटी है कि चेन्नई से वो FIR वो दिल्ली के संबंधित पुलिस थाने में भिजवा दें। ये दिस इज द जॉब ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू डू इट। So this is the concept of zero FIR. The word zero FIR word is not mentioned in the provision, but what is mentioned is beyond any jurisdiction. कोई jurisdiction की आवश्यकता नहीं है आपके पास. This is one. Second revolutionary change is incorporation of electronic communication. FIR based on electronic communication. Now you need not to go to the police station. You can message them. You can email them. You can WhatsApp them. Or you can go to their website and there is a format given. In that format itself, you can register FIR. This is the provision made. This is the provision made. This is second change. I will come to third change and fourth change later on, but to discuss these two changes. These changes have been now statutorily recognized. Zero FIR concept is not new. It is already mentioned in many judgments, especially in railway cases. In railway cases, आप जो है ट्रेन चल दी और ट्रेन चलते ही आपकी चेन किसी ने छीन ली, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली होंगे जिनकी चेन इस तरह छीनी गई होगी और जब ट्रेन चल दी है, और ट्रेन तो चल दी, आप क्या कर सकते हैं, आप तो अगले स्टेशन पे ही रुकेंगे आप। सो इस कंसेप्ट वाज ऑलरेडी देयर, वहाँ दिक्कतें होती थी पहले। दिस कंसेप्ट वाज ऑलरेडी देयर, बट को लॉ में डाल देने से क्या है कि अब साफ साफ हो गया, पुलिस को भी स्पष्ट हो गया कि हाँ साफ साफ कि हाँ FIR ये दर्ज हो सकती है। मैं 3-4 दिन पहले कपिल सिब्बल साहब का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये क्या बात हो गई, कहीं भी FIR आप दर्ज करा देंगे, इससे तो बहुत दिक्कत होगी, ये तो फंसा दिया जाएगा। सो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड हाउ ए पर्सन द लेवल ऑफ कपिल सिब्बल इज आर्गुइंग दिस. So I know whether a Kapil Sibal as an advocate is speaking or Kapil Sibal as an opposition member is speaking. And I found he's not an advocate speaking. He's as a person who is an opposition member who is speaking. Let me tell you why. 2013-14 में Kapil Sibal साहब थे लॉ मिनिस्टर. 2013-14 में होम मिनिस्ट्री has sent an advisory to all states कि जीरो FIR दर्ज होनी चाहिए. Of course he was not the home minister, but
एफआईआर के बारे में, लॉ के बारे में जो भी जिनकी जानकारी होगी, जो जानकारी इशू कराई जाएगी, वो लॉ मिनिस्टर की बिना सहमति के नहीं हो सकती। आई थॉट दैट आई विल ट्वीट हिम कि सर यू प्लीज सी दिस इज योर डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग योर टाइम व्हेन यू वर द लॉ मिनिस्टर, दिस एडवाइजरी वाज गिवन, दिस इज नॉट कि 10 साल बाद अचानक आ गया है। तो जब भी कोई आलोचना होती है तो हमको आलोचना को इस कंटेक्स्ट में भी देखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से एफआईआर पहले होने शुरू हो गई है। जिनकी कोई सामान खो गया होगा दिल्ली वगैरह में, वो जानते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर पहले से करते रहे हैं। तो ये एक रिकॉग्निशन है, पैन इंडिया कर दिया गया है। अब उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे ये आसान काम नहीं है, और इसलिए जो रिसर्चर है, जो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं इस यूनिवर्सिटी में और जो लॉ के लोग हैं, ये दोनों मिल करके इसका रास्ता निकालें और सरकार को प्रपोज करें। मिनिस्ट्री जो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उनको आप प्रपोज कर सकते हैं कि हम ऐसा ऐप बनाने का ट्राई कर रहे हैं, हम ऐसा डाटा बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन इस तरह की एफआईआर की हो सकती है, इजीली हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ अभी एक शर्त ये लगा दी गई है कि 3 दिन के बाद, आफ्टर 3 days यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड साइन, ये करना होगा। तो आप पुलिस स्टेशन पे अगर उनका कोई अपना ऑफिशियल कोई व्हाट्सएप नंबर है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आपको जाके साइन करना होगा। ये साइन करना इसलिए ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई करना आदमी को बहुत मुश्किल है, कौन सा व्यक्ति है, किस व्यक्ति ने मैसेज किया है। जैसे हमारे ही व्हाट्सएप पर अगर कोई मैसेज आ जाता है और मैं इसको नहीं जानता हूँ, तो कैसे मैं जानूँगा कि मैसेज किस व्यक्ति का है, ठीक है। और आजकल तो वो भी ज़माना आ गया है कि जो है माई वाइफ हैज़ रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम ए नंबर, जिसमें कि फ़ोटो मेरी थी पर नंबर कोई और था। फ़ोटो मेरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये की ज़रूरत तुरंत पड़ गई है मेरे एक दोस्त को और 50,000 रुपये इस नंबर पे भेज दो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप में से भी कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें फेस की होगी, ठीक है। और फ़ोटो देखा हमने तो फिर नंबर हमेशा वेरीफाई थोड़ी करने जा रहे हैं आप। फ़ोटो देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, लग रहा है पैसे मांग रहे हैं किसी कारण से, बाई चांस वो पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए वेरीफाई करना जरूरी है। इसलिए 3 दिन बाद कहा गया है कि यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन। थर्ड है फ्री कॉपी टू इन्फॉर्मेंट एंड विक्टिम। नाउ जो दो लोग होते हैं, एक इन्फॉर्मेंट होता है और एक विक्टिम होता है। इन्फॉर्मेंट का मतलब क्या हुआ कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपने वहां से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि साहब एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, या ये आदमी है अनकॉन्शियस पड़ा है, लगता है उसके साथ लूट वूट हुई है, या आपने पूछा, उसने कहा हाँ 2 लोग मेरे से जो है मुझे मारपीट की और मेरा सामान लेके चले गए और वो अनकॉन्शियस है, कुछ बता नहीं पा रहा है, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया साहब ऐसी ऐसी घटना है, यू बिकेम इन्फॉर्मेंट, दैट पर्सन इज ए विक्टिम, दैट पर्सन इज ए विक्टिम। अभी तक क्या होता था कि केवल इन्फॉर्मेंट को एफआईआर की कॉपी मिलती थी। आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपको कॉपी मिली, आप इन्फॉर्मेशन दे के चले गए, आप कहीं अपने काम से चले गए। विक्टिम है, विक्टिम को चाहिए सामान, वो फॉलो अप कर रहा है, उसे कॉपी नहीं मिली एफआईआर की। तो अब ये प्रोविजन कर दिया गया है कि विक्टिम को भी एफआईआर की कॉपी बाई स्टैट्यूट मिलेगी। पहले कोर्ट के ऑर्डर से मिलता था, अब उसको बाई वर्च्यू ऑफ स्टैट्यूट मिलेगी, वहीं मिल जाएगी, कोर्ट के ऑर्डर के लिए जाने की जरूरत उसके लिए नहीं है। चौथे जो चेंजेस किए गए हैं, वो चौथा चेंजेस है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, कि कुछ मामलों में अगर कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई एप्लीकेशन दी गई है तो हम एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, पुलिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी कि कहीं कोई झूठा केस तो नहीं दर्ज हो रहा है। कई मामलों में, करप्शन के कई मामलों में और डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स में, आसपास के पड़ोसियों में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, लड़के लड़की में कुछ अगर दो क्लासमेट के लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके बीच कोई बात हो गई, मैसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस तरह के कई मामले देखने को मिले हैं वेयर फॉल्स एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड, सो देयरफॉर दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड, बट पुलिस हैज़ टू बी वेरी कॉशियस that in the name of preliminary inquiry that they should not start another extortion business. लास्ट जो सीआरपीसी या नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जो चेंज किया गया है, इसमें जो चेंज है बहुत ही बड़ा चेंज है, वो ये है कि इन ऑल केसेस वेयर द ऑफेंस हैज द पनिशमेंट ऑफ 7 years प्लस, आईपीसी में जिसकी डिस्कशन अभी शुरू करेंगे हम, आईपीसी में जो ऑफेंसेस हैं वो कई तरह के हैं, उसमें 1 महीने का भी पनिशमेंट है, 6 महीने का भी पनिशमेंट है, 3 साल का भी पनिशमेंट है, जिस चोरी के लिए 3 साल का पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है अनलेस एग्रावेटेड फॉर्म हो। लेकिन कुछ है उसके लिए 7 साल का पनिशमेंट है, कुछ के लिए 10 साल पनिशमेंट है, कुछ के लिए
14 साल पनिशमेंट है, कुछ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कुछ के लिए कैपिटल पनिशमेंट भी है। तो वैसे ऑफेंस जो 7 साल और उससे ज़्यादा के हैं, डकैती, लूट, डॉरी डेथ हो गए, मर्डर के केसेस हो गए, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हो गए, इस तरह के मामले जो सीरियस लेवल ऑफ फॉर्जरी, फ्रॉड हो गया, ये सब के मामले जो हो गए, इन मामलों में जब भी कोई एफआईआर दर्ज होगी, जब भी whenever the police will start its investigation, then a forensic expert will essentially go in the place of crime. अभी तक क्या होता था कि suppose an FIR is registered that some डकैती has been committed at one particular place, the police used to go और वो they used to collect evidences. But now forensic experts will also go. Forensic experts will also go to collect evidences. So police will do their legal job and forensic experts are very well aware किस तरह के evidences लेने हैं. अभी तक ये discretionary था, अब ये mandatory हो गया, जाना पड़ेगा. There is an opportunity here, again for every university, including your university. There is an opportunity again to have a collaboration with law, probably sociology and forensic science and technology. Good collaboration. Why? Lakhs of forensic experts will be required in next 5 years. Lakhs of forensic experts all over India will be required. So university should prepare. So the university can think of a diploma in forensics. This type of diploma can be thought of. And because it is the state responsibility, I am sure the Haryana government will be very, very eager to give you good funds. So you can think of this type of diploma courses in forensics, maybe a degree courses. Why not a degree courses in forensic sciences? So the stakeholders can think on APG can take a lead in this area in order to develop. You can also suggest the government that we are going to develop a forensic laboratory for the purpose of these all investigation purpose, and probably the government is going to give you a huge fund for that purpose. So this is about this BNSS. The game changer provision is this, which I was telling, that we all know that in India 5 lakh under trial prisoners are there inside jail. 5 lakh. They are under trial prisoners. Means they are not yet declared convicted. They are not yet offender. अभी भी accused ही हैं वो. केस चल रहा है उनका. अभी भी केस चल रहा है उनका. Now the change has been made. Not this. Yes. 479. Earlier it was 436 capital A. It says that if a person is a under trial prisoner, मान लीजिए चोरी के लिए वो जेल के अंदर बंद है, किसी कारण से उसको बेल नहीं हुई, चोरी की जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल है. 379 आईपीसी में उसकी सजा जो है, और अभी बीएनएस में भी ये सजा 3 साल है. मान लीजिए जेल में वो 1.5 साल से है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो अभी प्रोविजन ये कहता है कि हाफ ऑफ द पनिशमेंट ही हैज ऑलरेडी स्पेंट, नाउ ही शुड बी रिलीज्ड. अब ट्रायल चलता रहेगा, कोई बात नहीं है. दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 नाउ. दैट मीन्स 1 साल का अगर आपने टाइम बिता दिया है, तो अब आपको अब बाहर करने का राइट हो जाता है. यू हैव ए राइट टू गेट बेल इफ 1/3 ऑफ द पनिशमेंट यू हैव ऑलरेडी स्पेंट एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर. तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है. मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्पज, बिकॉज देर आर मेनी पीपल, सपोज देर इज ए पनिशमेंट फॉर सम ऑफेंस दैट इज 14 years and 1/3 comes around maybe 4 years or 5 years, and there are people inside jail, they are not getting bail due to various reasons. So 5 साल के बाद अब वो वापस जो है वो उसको बेल मिलने का राइट हो जाएगा. पहले वो थी स्थिति, उसको 7 साल तक वेट करना पड़ता था. तो दैट वे आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल ऑन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. Finally, I come to the most important part which has direct link with many of us. Offense क्या क्या हैं, अपराध क्या क्या हैं. हम लोगों ने देख लिया सबूत का एरिया. We have seen the area of evidence. We have seen the area of procedure. Now we shall now plunge into the area of what are various offenses, what are the changes that have been made. The name has been changed to Bharatiya Nyaya Sanhita. Earlier name was Bharatiya Dand Sanhita, Indian Penal Code. So the first thing was that कि
पुलिस का काम दंड देना है, न्यायालय का काम दंड देना है, प्रिजन का काम दंड देना है. नाउ द फिलॉसफी हैज चेंज, द माइंड सेट हैज टू बी चेंज. पुलिस का काम दंड देना नहीं है. क्या करना है? पुलिस का काम न्याय करना है. कोर्ट का काम भी दंड देना नहीं है, न्याय करना है. और प्रिजन का भी काम क्या करना है? दंड देना नहीं है, न्याय करना है. दंड तो उसका एक ऑफशूट है, वो उसका मेजर नहीं है, वो उसका सेंटर बन गया था. वो सेंटर नहीं है, न्याय सेंटर है. एक्यूज को भी न्याय चाहिए, ठीक है, एक्यूज को भी न्याय चाहिए, और विक्टिम को तो न्याय चाहिए ही चाहिए. भारतीय न्याय संहिता में अभी 19 चैप्टर्स हैं, 1 to 358 सेक्शंस हो गए हैं. इंडियन पेनल कोड में 23 चैप्टर्स थे, 1 to 511 सेक्शंस थे. 1 से 511 तक धाराएं थी और 23 उसमें चैप्टर थे. चैप्टर की संख्या घटा करके कम कर दी गई, 19 की गई. ये अच्छी बात है. 22 सेक्शंस हैव बीन रिपील्ड. रिपील का मतलब उसको हटा दिया गया, परमानेंटली हटा दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा. 175 हैव बीन अमेंडेड. और भी कई चेंजेस किए गए हैं, पर दो जो चेंजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम जानते थे, हम कहते थे कि 302 लग गया उसके ऊपर. अब 302 नहीं लगेगा, अब 103 लगेगा. तो 302 नहीं लगेगा, अब 103 लगेगा. ये चेंज हुआ है. और फिर हम कहते थे कि वो तो बहुत 420 आदमी है. आपको पता होगा 420, श्री 420 एक मूवी भी बनी हुई है. तो बहुत 420 आदमी है, उसने मेरे साथ 420 ही कर दी. अब कहा जाएगा उसने मेरे साथ 318 कर दिया, ये शायद कहा जाएगा. ये चेंजेस जरूर हो गए हैं. The 3 changes are that some offenses have been placed at one place. लॉ में हम इनकोइट ऑफेंस कहते हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी, एबेटमेंट और अटेम्प्ट. ये 3 डिफरेंट प्लेसेस पे थे, ठीक है. इनको एक जगह डाल दिया गया, एक चैप्टर में डाल दिया गया. ये सुविधा हो गई, आसान हो गया. लॉ वालों के लिए तो आसान हुआ ही. जो नॉन लॉ के लोग हैं, किसी कारण से लॉ के चक्कर में आ जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है. उनके लिए आसान हो गया. इट जस्ट बिकम ईजियर फॉर देम टू फाइंड वेयर द लॉ इज. सेकेंड, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन, there was no dedicated chapter for that. Now there is a dedicated chapter for women and children, that is chapter 5. That does not mean there was no provision. Indian Penal Code contained provisions, but they were found in one different chapter that was known as offenses affecting human body. उसमें ही जनरल भी अपराध थे, और जैसे मर्डर का अपराध भी उसमें था, महिला के खिलाफ जो अपराध है, रेप्स वगैरह, वो सब एक साथ थे. अब उसको अलग कर दिया गया है. वीमेन एंड चिल्ड्रेन के जो अपराध है उनको एक अलग चैप्टर में डाल दिया गया है. होम मिनिस्टर हमारे जो है अमित शाह साहब ने कहा कि हम इससे ये पुलिस को बताना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी है कि वीमेन और चिल्ड्रेन के जो अपराध है, उनके विरुद्ध जो अपराध है, उसको प्रायोरिटी पे हम लेना चाहते हैं. पर ध्यान रखना होगा, केवल बोलने से चीज़ें प्रायोरिटी पर नहीं आ जाती. अगर बोलने से ही आ जाए तो चैप्टर 1 में डाल देते हैं हम, क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? वो उसको आगे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. पुलिस को, कोर्ट को, प्रिजन ऑफिशियल्स को, सब लोगों को ये बताना होगा कि ये चिल्ड्रेन और वीमेन के बारे में जो अपराध है उसको प्रायोरिटी पे लेना है. थर्ड है न्यू ऑफेंसेस. ए फ्यू न्यू ऑफेंसेस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भारतीय न्याय संहिता में या आईपीसी में कोई ऑफेंस नहीं था, वो एक नया ऑफेंस इसमें आ गया है. टेररिस्ट एक्ट 113 में टेररिस्ट एक्ट को एक नया ऑफेंस बनाया गया है. प्रॉमिस टू मैरी 69 में एक ऑफेंस बनाया गया है, और स्नैचिंग 302 में एक अलग से ऑफेंस बनाया गया है. नाउ दिस इज द ओल्ड पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड. आप देख रहे हैं प्रोविजन 376A, 376AB, B, B, C, C, DA, DB, DB. नाउ द लॉ इज चेंज्ड लाइक, कोई चेंज और नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. Now you can yourself appreciate the change, that there is a sequence, and I go back here, 376A, A, B, B. अब उसमें अगर दर्ज करने में A छूट गया या B छूट गया तो जो है, जो कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. ठीक है, great changes will be there. So it is now the renumbering has been done and a proper numbering has been made. Proper. Sir.
अब तो इसके चांस कम हो गए ना। लेकिन अभी भी तो हो सकता है, वो 66 की जगह पे 67 लगा दिया गया या 65 लगा दिया गया, हो तो सकता ही है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हाँ, ये है कि उसमें ये नहीं कह, जैसे अभी कह सकते हैं कि सर 76 ए बी में से सर बी छूट गया गलती से, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि 63 की बजाय 64 हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताना, ठीक है ना। वो तो तब भी सकता है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ये आसान हो गया है चीज़ों को जानना, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और पुलिस ऑफिसर्स के लिए, सबके लिए। कुछ चेंजेस और हुए हैं जो मैं बता रहा था, जो 354 ए बी, 354 ए सेक्सुअल हैरासमेंट है। सेक्सुअल हैरासमेंट के 2 लॉ हैं, ध्यान रखना चाहिए, खास करके यहाँ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी उनको ध्यान रखना चाहिए। सेक्सुअल हैरासमेंट का एक तो पॉश है 2013 का, वो प्योर सिविल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ नहीं है। क्रिमिनल लॉ आईपीसी में 354 ए है जो अभी चेंज हुआ है, और ये लॉ कुछ बदले हैं कुछ। इसकी जो चेंजेस हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो चेंजेस हैं, पहले तो ये चेंज मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, इसलिए डिस्कस कर लूँ कि ये सबके क्लोज है। ये चेंज है हिट एंड रन केस को लेकर। हिट एंड रन केस, हिट एंड रन केस का मतलब ये हो गया कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी आप ठीक है तसल्ली से चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, जिम्मेदारी से चला रहे हैं गाड़ी को, लेकिन आपने देखा कि आगे कोई मतलब कि भीड़ भाड़ नहीं है, आपने स्पीड बढ़ा दी एंड द स्पीड यू वेंट टू 60 और 80। द स्पीड लिमिट इज 40, प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट इज 40 और मे बी 60 है, आपने 80 कर दिया, थिंकिंग दैट कि रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गाड़ी नहीं है। अचानक जो है एक जगह पे एक कोई बच्चा छोटा सा है, वो तेजी से सड़क पार कर रहा है, आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, ब्रेक लेते 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 भी आपके नहीं चाहते हुए भी उस बच्चे को चोट लग जाती है और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। दीज केसेस आर नंबर 1 नॉट ए मर्डर केसेस, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पुलिस के पास बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जो लोग लॉ के नहीं है उनको बताने का कि भैया तुम तो गाड़ी चला रहे थे और ये आदमी मर गया है, अब तो मर्डर केस तुम्हारे ऊपर दर्ज होगा, ठीक है। आदमी घबरा जाता था और फिर जो भी वो एक्सटॉर्शन के रूप में जो भी मनी देना चाहते थे वो देना पड़ता था कई बार, तो ऐसा तो नहीं है अब। तो ऐसे मामले कहते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंस, दिस इज वन एग्जाम्पल, डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो आप गाड़ी चला रहे हैं और उसमें डेथ हो जाती है गाड़ी चलाते हुए, और आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आप कुछ ना कुछ आपकी कमी है कानून में, तो ये हुए डेथ बाय नेग्लिजेंस। इसके लिए 304 ए में पहले प्रोविजंस थे, आईपीसी में 304 ए में प्रोविजंस थे, जिस पर कि अदनान जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा इसके साथ साथ और भी उसमें इश्यू को डिस्कस किया है उन्होंने, उसको बदलकर 106 किया गया है। पहले क्या था उस ऑफेंस में, उसमें पनिशमेंट जो थी केवल 2 साल थी। सो मान लीजिए कि एक जो है व्यक्ति ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है और उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा है और उस ज़्यादा स्पीड के कारण 3, 4, 5 लोगों को उसने मार दिया, तो भी उसकी मैक्सिमम सज़ा कितनी होती थी? 2 साल की होती थी, मैक्सिमम पनिशमेंट 2 years। सो देर वॉज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट कि इवन इफ 4, 5, 6 people are killed, but the maximum punishment, even if the court wants to give more punishment, the punishment was limited to 2 years, which was grossly inappropriate, inadequate. So the first change that has been done is the punishment has been increased to 5 years. So now if anything happens where you do it negligently, not deliberately, negligently, and somebody is killed, then the punishment increases to 5 years. So we all should be alert. This is first point. When we say punishment is increased to 5 years, that does not mean punishment is 5 years. No, it is maximum punishment. So 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 2 year, 3 year, 4 year punishment can be given. Maximum punishment is 5 years. This is first point. But suppose you are driving, और जैसे मैंने बताया कि ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की डेथ हो गई और आपको लगा कि अब क्या करें, तो वहाँ बहुत कम लोग होंगे जो वहाँ रुकेंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। वन, दैट पीपल विल कम एंड देन start misbehaving you, or they can set ablaze your property, your car, and maybe they can go to any extent, can start beating you, and there are instances that people have been killed also. So for a secure
escape, everybody wants secure escape. ठीक है भाई, गलती तो हो गई हमसे, लेकिन अब हम क्या करें, हम भागते, तो आप भागेंगे। नौ पहले क्या था कि लोग भागते थे, ट्रक ड्राइवर भी भागते थे, बस ड्राइवर भी भागते थे, हम भी भाग जाते थे, और तब भी 2 साल की पनिशमेंट होती थी। अब इस चीज़ को चेंज किया गया है। अगर एक्सीडेंट आपसे हो गया है, इफ देयर इज एन एक्सीडेंट एंड द पर्सन इज किल्ड, ही इज डेड, और अगर आप भाग गए तो आपकी पनिशमेंट बढ़कर के अब 10 साल हो जाएगी। 10 साल पनिशमेंट हो जाएगी। इसका मतलब आपको भागना नहीं है, क्योंकि भागने पर पनिशमेंट 10 साल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, क्या वहां रुकेंगे? वहां पे रुकेंगे तो फिर हमको, मैं तो आई हैव टोल्ड यू, इफ यू स्टे देयर देन एडवर्स कंसिक्वेंसेस, मारपीट हो सकती है आपके साथ। तो देयरफॉर देन सो मारपीट हो सकती है आपके साथ। तो ऐसे में पुलिस, ऐसे प्रोविजन जो है, व्हाट प्रोविजन हैज डन, दैट प्रोविजन सेज यू हैव टू रिपोर्ट टू द पुलिस ऑफिसर। नाउ अंडरलाइन द वर्ड रिपोर्ट, इट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग। Report to the police officer has been interpreted as if you have to go and surrender before the police officer. It is not required. Report can be done by any means. You can phone the police. You can just call 112 or 100 कि साहब ऐसे गाड़ी से जा रहे थे, हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और मैं वहाँ रुक नहीं रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग हैं और हमें डर है, अपना खतरा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, आगे निकल रहा हूँ, अपने काम से निकल रहा हूँ, ये मेरा गाड़ी का नंबर है ऐसा। अगर आपने ये बात कर दिया, अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया, तो आपका वापस जो मामला है आ जाता है 5 ईयर में। 10 ईयर की बजाय वापस वो 5 ईयर में आ जाता है। तो दिस चेंज हैज बीन मेड, ये ध्यान रखना है अपने को। सेकेंड चेंज है कि यदि इफ यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड देन द केस बिकेम नॉन बेलेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल और नॉन बेलेबल? इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस you can get bail only from the court and court may or may not give your bail. In case of bailable offense, you get bail from the thana itself, and that is a matter of right. Either from thana or from the court, it is a matter of right, so it is a bailable offense. So if you inform the police, it remains a bailable offense. If you do not inform the police, it becomes non-bailable offense. So if you inform, police even cannot arrest you. Why? Because you have informed and it is still a bailable offense. It is still a bailable offense. There are various changes. Last changes that I will discuss with you is community service as a punishment has been incorporated. So there are various ways of punishment, but one is the community service. Community service का मतलब है कि मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, छोटा अपराध किया है, चोरी की है, छोटी चोरी की है किसी ने, तो आपने उसे कह दिया कि ठीक है आप जाओ और जाके जो है वहाँ स्कूल है, स्कूल में बच्चों को आप पढ़ाएंगे। आप कम्युनिटी सर्विस से रिफॉर्मेटिव वे, ट्रैफिक का रूल का वायलेशन कर दिया है तो जाइए आप ट्रैफिक वाले के पास जाइए और आप खड़े होकर वहाँ पर 4 दिन तक ट्रैफिक वाले की हेल्प करिए। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड। दिस वुड बी द लास्ट प्रेजेंटेशन. This type of cases are coming, like many cases are coming. What happens that young लड़के लड़कियां हैं, उनके बीच दोस्ती हो गई, एज ए स्टूडेंट कहीं प्रोफेशनल के रूप में मिले, दोस्ती हो गई, उसके बाद उन लोगों ने आपस में साथ रहना शुरू कर दिया। साथ रहने के बाद फिर कन्फ्लिक्ट हुए, 5 महीने 6 महीने, आफ्टर 5-6 months, साल भर 2 साल के बाद द बॉय सेज दैट नो आई डोंट वांट टू स्टे, और द गर्ल सेज आई डोंट वांट टू स्टे. In these cases, often these type of cases are coming where a girl approaches the court, approaches the police station and says that the boy, that the person has promised me that he will marry. And based on this promise, I started living with him and started engaging in the physical relationship. And now he is denying. And therefore, a rape case should be registered. And in those cases, rape cases had been registered previously in many times. So there was great dispute that whether this type of cases are rape cases or not. So this dispute is now also over. And now section 69 comes in picture. That if the boy and girls stay together in a living in relationship, and right from the beginning, and there is a promise that they will marry together, they will marry after some time, and right from the beginning, boy did not had the willingness and the intention, right from the beginning, had willingness or the intention to fulfill the promise, he wants to just enjoy it, then in those cases 69 will come in picture. So this is the last thing that I want to make. So there are many changes regarding
terrorist offences, regarding organized crime. These things have also been incorporated, but because there is a lack of time, I just conclude this part of discussion, and the House is open for any type of question. Thank you again. Sir, please. इनको स्पीकर, अगर कोई स्पीकर दे दीजिए इनको, सर को. Yeah, I wanted to ask you about the law you said about law of negligence, right? Yes, sir. Yeah, 5 years or 2 years, whatever it is. But what is the mistake of the driver who is going on the road where no one is supposed to come and somebody comes on the way and it hits it in despite drivers all the efforts to save? So what is the actually crime? No, I'm just asking. Yeah. So I just want to ask that whether still he or she will be punished for 2 years or 5 years, whatever it is. Very good question. So because this question is very important, let me elaborate this question. The question is that suppose the driver is driving and he is within limit. Sir, this is your question. He is within limit. He is within limit. His driving is as per rules, and he is not negligent anyway. If any accident takes place, the law cannot bind him. Even if not 1, 2, 3, 4 people have been killed because of that. So law does not bind, number 1, no negligence. The case may be registered, but then the case can either be quashed or he will be acquitted finally. So if there is no fault on the part of driver, there is no negligence, there is no violation of speed limit, okay, and he has taken all due care, then in those cases the driver cannot be, FIR cannot be registered against the driver, and no prosecution should take place. However, if there is no camera on the road to detect all this, so there is no evidence who is saying right in that scenario. And second part of this is, if owner is along with the driver and this happens, it may not be a mistake. So what are the issues despite going to the police station personally reporting that such thing has happened? Very good. The two questions. One is that if owner is there, what will be there, and the first part is the first part, sir. No camera. So first is the issue of evidence. Second is about owner. So owner is not at all responsible. Number 1. Under criminal law, owner is not at all responsible. Even if it is the gross negligence of the driver, owner is not criminally responsible. Under civil law, he may be, or owner may be responsible to give compensation or other thing. This is one. So if the driver commits it, he was drunk, you did not know, and accident took place and 2-3 people died, it is the driver who will be responsible, not the owner. So police says that the owner is responsible, police implicates, that is completely wrong, that is illegal, action can be taken against police. This is one. Yes. Whether the driver is responsible, then whenever there is a crime, is it a bailable or non-bailable for the driver? Now in the current law, this is non-bailable, because if the accident has taken place, okay, and the police has not been reported, okay, it becomes non-bailable. Okay. But kindly note that 106 clause 2 has not yet been implemented. It has not yet been implemented. So that way all drivers are lucky, because 304A is implemented these days, and that is completely bailable. But this scenario is going to change. Coming to this question of evidence, how will we establish that we were within limit? This is certainly a question of evidence, and burden is on you to establish. This is why many times what the drivers do, they have a front camera also. To show that I was not negligent. It is a practice in USA and UK and many places, not in India, but that is probably the best way. Otherwise, if someone is killed on the road because of your vehicle,
prima facie the case will go against you unless you have anything to establish that no, I was within limit. I was within limit. So if you were within limit, then other evidences can be when the accident took place, there would be other people. So kindly keep in touch with those people. They will themselves say कि नहीं गाड़ी तो बहुत धीमे चल रही थी, गाड़ी आराम से चल रही थी. तो आसपास के जो लोग हैं, they can be evidence in those cases. एक लॉ हुआ करता था, गुड समैरिटन लॉ, बड़ा आज नहीं बना था, अभी इसमें है क्या? Good Samaritan law is existing. Yes, that is existing. That is still existing. Yeah. And yes, और कोई sir. सर हमने सनी देओल की पिक्चर देखी थी, उसमें वो बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सर मेरा ये सवाल है कि हम इस जुडिशरी सिस्टम में कहीं वर्क करते हैं, मैंने कुछ कंप्लेंट लॉक करी है किसी के अगेंस्ट में और वहाँ केस चल रहा है, क्या ऐसा कोई टाइम फ्रेम है कि मेरे को साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मेरे को मेरा डिसीजन मिलेगा? ऐसा कोई प्रोविज़न गवर्नमेंट लॉ में क्यों नहीं करती है कि आदमी भगवान को प्यारा हो जाता है, उसका केस अभी भी पेंडिंग रहता है? तो मैं इस पे कुछ आपकी रोशनी चाहूँगा. So in new BNSS, changes have been made. Or because there was no time, I have not discussed this, but you can see that some timeline has been made. No, it is not there with the slide. So some timeline has been made. So for example, within 60 days of investigation, within 30 days of investigation, within 7 days of investigation, these timelines have been incorporated. But there is a note of caution. These timelines are not new. Timelines have always been there. For example, in a court, the maximum adjournment shall be given is 3 only. The law says maximum adjournment should be given only 3. 1, 2, 3 के बाद adjournment नहीं देंगे. But the practice is that in one case there are sometime maybe 20 adjournments. So these practices need very not only strong will of the government, but also far more stronger implementation of these laws. And number of police officers we need to increase. So investigation continues for maybe for maybe 3 months, 4 months, 5 months. Why? Because the same police officer has to do investigation, multiple investigation. At the same time, he has to go to VIP duty. At the same time, he has to settle the dispute between husband wife भी चले आए हैं वहाँ पर, वो भी उसको dispute settle करना है. हाँ, ट्रैफिक में भी उसको बुला ले रहे हैं. तो हमने तो जैसे लग रहा है ऐसे पुलिस अधिकारी को वो समझ लिया, भगवान समझ लिया है कि उसके जो है बहुत सारे हाथ हैं, सब कर सकती है. तो ये सब चीज़ें चेंज करना होगा. और इसीलिए मैंने शुरू में कहा दिस इज जस्ट ए गुड बिगनिंग. वी शुड नॉट बी इन ए कन्फ्यूजन दैट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग रिवोल्यूशन इन नेक्स्ट 10 years. नो, इट इज नॉट, अनलेस अदर चेंजेस हैव बीन मेड. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस फोर्स नीड्स टू बी डबल्ड, एटलीस्ट डबल्ड. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है. नंबर ऑफ जजेस केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट में अभी भी 5,000 सीट्स अभी भी नहीं खाली पड़ी हैं. 1, 2, 3, 4 नहीं, 5,000. वो भी पुराने स्ट्रेंथ से बात कर रहा हूं मैं. इफ यू टेक द स्ट्रेंथ फ्रॉम यूनाइटेड नेशन, वी नीड एटलीस्ट 50,000 मोर सब जजेस, 50,000 मोर. दैट इज द लिस्ट. अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो चेंजेस नहीं होंगे. बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, सीरियसली वर्किंग. और देयरफॉर मे बी वी कैन find a better picture, not at all a picture that we want, but a better picture in next 10 years. सर मेरा दूसरा सवाल, जजमेंट के सामने, जज के सामने सारी जिरें चलती हैं, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों काम करते हैं. आजकल हम बहुत सारी सीरीज़ भी देखते हैं OTT पे, क्राइम के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सर लैक ऑफ एविडेंस, जज बोलता है कि मुझे पता है कि क्राइम क्या हुआ है और उसका क्या दंड होना चाहिए, बट मैं बैठा रहता हूँ कि मेरे सामने वो एक एविडेंस आए जिस पे मैं जजमेंट दूँ. तो एविडेंस एक ऐसा पैरामीटर है जिस पे सारी चीज़ें टिकी है,
और बहुत सारे इंडिया में केसेस ऐसे हैं जो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से निकल जाते हैं। इस पे लॉ क्या कहता है और क्या होना चाहिए वो जानना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है। सो देयरफॉर राइट फ्रॉम द FIR व्हेन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, दैट इज द प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ एविडेंस स्टार्ट्स। कलेक्शन ऑफ एविडेंस को ठीक करने की जरूरत है, एंड देयरफॉर इट इज गुड दैट नाउ forensic experts are made mandatory. So the advantage would be that if suppose there is a suspected murder somewhere. So let me give you an illustration कि मैं जहाँ गोरखपुर में पहले रहता था तो वहाँ अचानक मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि जो हमारी काम करने वाली है, मेरे पड़ोस में जो काम करने वाली लड़की है, उसने फांसी लगा लिया। तो हम लोग सब भाग कर आए। जब मैं पहुंचा, और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, मेरे आने के पहले तक 5-6 लोग अंदर जा चुके थे और सामानों पे, बहुत सारे सामानों पे हाथ लगा चुके थे। उसके बाद मैंने पहुंचा, मैंने उसको थोड़ा सिक्योर किया कि आप अंदर मत जाइए। पुलिस थोड़ी देर बाद आई, वो भी आकर देख के चली गई, पर उन्होंने उस प्लेस को सिक्योर नहीं किया। उसके बाद जैसे होता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत सारे लोग आए, सारे लोग उस प्लेस पे घूम रहे हैं। आप जान रहे हैं जो लोग आएंगे जाएंगे, किसी के दरवाजे पे उंगली लगेगी, किसी के कुछ लगेगा, ठीक है। वी इनिशियली थॉट इट इज ए केस ऑफ सुसाइड। व्हेन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट केम, द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेटेड इट इज ए मर्डर। नो, जब तक सुसाइड था चलो चल रहा था, अब तो मर्डर हो गया, स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ने कहा कि हम जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पे गए तो वहां तो इतने सारे फिंगरप्रिंट हैं कि हम फिंगरप्रिंट किसका पकड़े, कौन आया था अंदर। So the police should also be trained that, or the forensic expert should come immediately. तो पुलिस भी हमारे यहाँ उतनी ट्रेंड नहीं है कि उस तरह तुरंत हमने जो है उनको सिक्योर किया पोजीशन को। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मुझे ध्यान आ रहा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर आए जब वो शायद अगले दिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए, तो जो एविडेंसेस थे वो एविडेंसेस तो फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो सेक्शन 173 में जो प्रोविज़न किया गया है, 176 में क्लॉज 3 में जो प्रोविज़न किया गया है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब जरूर रहेंगे, मैंडेटरीली रहेंगे, ये प्रोविज़न आने वाले दिनों में ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि जो एविडेंसेस हमारे पास हैं वो सिक्योर रहेंगे। अनजाने में या जानबूझकर भी पुलिस अगर एविडेंस को ख़राब करना चाहेगी तो वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। कोई और बात पूछना चाहते हैं? सर, जो भी चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं वेल अप्रिशिएटेड है, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन आई एक्सपेक्ट इक्वालिटी इन द लॉ? लाइक इफ आई कमिट अ क्राइम and daughter of the chief minister or the president or any minister MLA committed the same crime, both of us will not be treated equally, sir. So what steps government has taken on this? ठीक है, good question. First the changes are not brought by the government. Changes are brought by the parliament. Government is executive body, parliament is legislative body. Laws are made by the parliament or legislature. This is one. Second is you expect equality. Equality is not expectation. Equality is a right. Equality is not just a right. Equality is a fundamental right. If it is violated, you can directly approach to the Supreme Court. Indeed, you need not to approach. You just write a letter from your place, from your hostel room, from your room to the Supreme Court and or the High Court, and if there are evidences, courts will take care of. This is the first point. Now, if a crime is committed by someone who is very powerful, rich and famous, and someone who is a normal person, there are different treatment that we have seen. There is no doubt. There is no doubt that these different treatment are given by the police at least. I won't say by the court, but the police, it is done. So in case it is done, there are media, there are civil society, there are courts to make this balance, that if police is not registering FIR against certain big people, the media places pressure on that, and then ultimately the FIRs are registered. So there are illustrations that people who are very big and mighty, they had to go to the jail. Our former home minister had to stay in jail, who himself is a very, very big, very known advocate. He stayed for jail not just 1, 2, 3, 4, 5 days, for month. So let us not say that big people are not inside jail.
big number of builders, they are still in jail for last 3, 4, 5, 6 years. Sahara Shri remains in jail for last 2, 3, 4 years. This builder, Mr. Sharma of, I'm forgetting the name, he is in jail and the case is going on. So there are a lot of people who are billionaires and millionaires, they are inside the jail. So there are chances for some time that the discrimination can take place. But if the press is alert, if the media is alert, if the civil society is alert, and if we and you are ready to go to the Twitter and go to the WhatsApp, and if required, go to the courts and come to protest on road, probably nobody can violate equality. Thank you.